Hello everyone, welcome to lecture 3 of chapter 1 of BCK CA Foundation. So we have to start today with distinguishing characteristics of business via other economic occupations. Like there are many economic activities in which business is one part, but we have other economic activities also, that is profession and employment. So in this paragraph they have given about employment and profession. We'll be learning about these through this distinguish between business, profession and employment. It is more easy to learn and understand from this table. So let's start. Distinction between business, profession and employment. So first basis is meaning. What is business? Business is something which is market oriented activities are being involved, like industry, trade and commerce. We have learned in detail that what is industry, what is trade and what is commerce. Now the next is profession. Profession का meaning क्या होता है? Profession होता है when we are rendering services. Render service कर रहे हैं, like when you will become CA you will be called as profession, you will be called as a professional, and that a profession is done when you have prescribed qualifications. Prescribed qualification किस कौन देता है हमें? That professional body, like CA को देता है ICAI gives us professional qualification, डिग्री मिलती है हम लोगों को CA की, तो that is having stamp of ICAI. ऐसे डॉक्टर के लिए MBBS करना पड़ता है, ठीक है. सो दीज आर प्रोफेशन. एक डॉक्टर हो गया, एक CA हो गया, दी लॉयर हो गया, ठीक है. दीज चार्ज प्रोफेशनल फीस, राइट. सो what does a professional person do? He renders services, whereas in business it involves activities, buying and selling of goods. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी हम लोग सर्विसेज रेंडर करते हैं, बट हम लोग को वेजेस मिलता है और सैलरीज मिलता है. हम लोग को प्रोफेशन में मिलता है प्रोफेशनल फीस वी चार्ज, बट एम्प्लॉयमेंट इज डन व्हेन वी आर वर्किंग अंडर समवन. एम्प्लॉयर हमें हायर करता है, तो दैट वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर, और उसकी सारी बात माननी पड़ती है. बट एक प्रोफेशन में हम लोग इंडिविजुअल होते हैं, हम लोगों की मर्जी के हिसाब से हम लोग सर्विसेज रेंडर करते हैं और फीस चार्ज करते हैं. देन मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. हाउ अ बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड. बिजनेस इज मेड एंड फाउंडेड बाय द एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इज द फाउंडर ऑफ द बिजनेस and all the decisions and legal formalities are fulfilled by that entrepreneur only. Now the profession. Profession कैसे establish होता है? Simple membership of the professional body and certificate. जब हम CA बन जाएंगे तो हमारे को एक membership मिलेगी, membership ID मिलेगी from this ICAI that will be using for doing any CA activity like audit के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको CA अपना फॉर्म खोलना है, उसके लिए भी आपको ये सब सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे. दैट मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज दैट मेंबरशिप ID फ्रॉम दैट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड. वेयर एज एम्प्लॉयमेंट के लिए लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको एम्प्लॉयर इंटरव्यू लेगा, उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए लेटर पे भेज देगा कि आप कल से काम पे आ सकते हो. तो ऐसे एक एम्प्लॉयमेंट शुरू होता है. वेयर एज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. बिजनेस में सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब इन रिटर्न क्या मिलता है? बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है. प्रोफेशन में प्रोफेशनल को प्रोफेशनल फीस मिलती है. एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉय को वेजेस एंड सैलरी मिलती है. प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन. एक बिजनेस करने के लिए यू नीड नॉट टू बी MBA और सम हैविंग ग्रेजुएशन और डिग्री. यू कैन स्टार्ट your own business without any qualifications, whereas एक profession के लिए you require qualifications. Those qualifications are very necessary, right? Strictly हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, whereas employment के लिए भी qualifications चाहिए होती है, but एक profession में strict qualifications चाहिए होती है. ओके, और employment में हम लोगों को सिर्फ एक नॉर्मल हमें वो काम आना चाहिए.
वो चीज़ होती है, ठीक है। देन एथिकल गाइडेंस का मतलब एक बिजनेस में फाउंडर वैल्यूज मतलब कि एक बिजनेसमैन हमारा फाउंडर होता है बिजनेस का, तो उसमें जो वैल्यूज है वही सब, और जो उसको पता है वही सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है बिजनेस में। वेयर एज एक प्रोफेशन में जस्ट प्रोफेशनल कोड्स, जो हमारा ICAI कोड ऑफ कंडक्ट हमें पढ़ाता है, जिस चीज़ की हम अब पढ़ाई कर रहे हैं, इससे हमें चीज़ें सीखने को मिलेगी कि एक CA का क्या काम होता है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स हमें ये कोड्स फॉलो करने पड़ते हैं। दीज आर ethical, that rules and regulations. Ethical guidance means rules and regulations to be followed which are provided by the professional body. एक एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय को क्या फॉलो करना होता है, जो उसका एम्प्लॉयर कहता है, जो एम्प्लॉयर ने कहा, जो एम्प्लॉयर ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, दैट वी नीड टू फॉलो। इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट बिजनेस में? यू हैव टू रिक्वायर मोर इन्वेस्टमेंट। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में चाहिए होता है। बिजनेस में आपको बिजनेस ओपन करने के लिए लैंड चाहिए होती है, गुड्स सेल करने के लिए गुड्स की इन्वेंट्री चाहिए होती है, फिर उसको सेलिंग के लिए सेल्स पर्सन रखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी बिल। वेयरएज प्रोफेशन के लिए देयर आर इन्वेस्टमेंट, एक बस ऑफिस खोलना पड़ता है, बट द इन्वेस्टमेंट आर लीस्ट। यू डू नॉट रिक्वायर स्टॉक और इन्वेंट्रीज फॉर अ प्रोफेशन, फॉर doing a profession. Just open an office और उस ऑफिस में बैठ जाओ, आपके पास खुद लोग आएंगे। एक एम्प्लॉयमेंट में नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हमें सिर्फ एप्लीकेशन करनी पड़ती है, जॉब वैकेंसीज की निकलती है जो, और हमें एम्प्लॉयर हायर करता है। देन वी हैव पर्सनल ऑटोनॉमी। पर्सनल ऑटोनॉमी, एक बिजनेस में हम लोग अपने खुद के बॉस होते हैं। वी आर ओन बॉस ऑफ आवरसेल्व्स, राइट। हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही बिजनेस में होता है। इन प्रोफेशन वी आर क्वाइट अ बॉस, बट हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हमें प्रोफेशनल बॉडी के फॉलो करने पड़ते हैं। हम लोग इतना ज़्यादा भी नहीं कह सकते, but we are boss in profession also, but in employment we are not the boss, because employer के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। employer जो कहता है, employer के codes of conduct फॉलो करने पड़ते हैं। we are not our boss, हमारा बॉस होता है employer। फिर popular psychological motives, क्या motives होता है? economic achievement means profit। हमें सिर्फ प्रॉफिट देखना होता है बिजनेस में, नथिंग एल्स। सोशल वर्क भी नहीं देखना पड़ता है कि सोसाइटी को हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है कुछ। इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, इकोनॉमिक मीन्स प्रॉफिट। वेयरएज एक प्रोफेशन में वी गिव सर्विसेज टू द क्लाइंट्स एंड सोसाइटी, वी रेंडर सर्विसेज, दैट इज द मोटिव वी आर फुलफिलिंग बाय रेंडरिंग सर्विसेज। और एक एम्प्लॉयमेंट के लिए ही इज अर्निंग फॉर द लाइवलीहुड, वो एक दिन की 2 टाइम की रोटी खाने के लिए वो एम्प्लॉयमेंट की नौकरी करता है, राइट। देन द पॉपुलर साइकिल, देन वी हैव सर्टेनिटी ऑफ इनकम। सर्टेनिटी ऑफ इनकम का मतलब होता है कि कितनी इनकम, व्हाट इज द रिस्क, ठीक है। तो रिस्क, हाउएवर देयर इज द लीस्ट quite a bit the most contractually determined periodical income means certainty of income, कितने क्या चांसेस होते हैं कि कितना टाइम बाद इनकम मिलेगी। तो बिजनेस में हम लोग कभी भी इनकम निकाल सकते हैं, बिकॉज डे टू डे बिजनेस होता है, तो बस डेली प्रॉफिट्स आते हैं। वी कैन यूज दैट मनी ऑन डेली बेसिस, राइट। हम उसको खर्च करें या फिर और गुड्स प्रोक्योर करने में इन्वेस्ट करें, दैट डिपेंड्स ऑन अस, राइट। सो देयर इज लीस्ट सर्टेनिटी ऑफ इनकम मीन्स इनकम रिटर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वेयरएज रिस्क के चांसेस कम होते हैं। एक प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल फीस, जब हम लोग अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं, अगर हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई होगा देन ही विल पे फीस टू अस, तो क्वाइट अ बिट सर्टेनिटी होती है। द मोस्ट सर्टेनिटी होती है इसमें, हमें इनकम तो मिलनी है यार। बिजनेस में वी आर हैविंग रिस्क,
तो वो जो रिस्क है हमारा पैसा डूब भी सकता है। वेयर एज इन एम्प्लॉयमेंट हमारा पैसा कभी नहीं डूबेगा, एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, हर मंथ के बाद हमें इनकम मिलेगी, एक मंथ हमें काम करना पड़ता है, उसके बाद हमें इनकम मिल जाएगी। सो इट इज लाइक दैट। देन वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, and stability of tenure, durability of occupation। एक बिजनेस अनसर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है, वेयर प्रोफेशन को आप कभी भी बंद कर सकते हो, एक एम्प्लॉयमेंट आप नौकरी कभी जॉब कभी भी छोड़ सकते हो। देन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, आप एक बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो, वेयर प्रोफेसर जो उसने पढ़ाई की, आप सीए बन जाओगे, क्या आपका काम कोई और कर सकता है? नो वन एल्स कैन डू, बिकॉज आपने पढ़ाई की है, तो दैट स्किल्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। एक एम्प्लॉयमेंट में अगर एक एम्प्लॉयमेंट है वो एक शूज की फैक्ट्री में काम करता है, तो क्या आप जाके शूज बनाने लग जाओगे अगले दिन से? नो, बिकॉज ही नो दैट हाउ शूज आर मेड, व्हाट आर द प्रोसेस, कि कौन से मशीन में कब कौन सी चीज डालनी है, ही नोज। तो इसमें भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसमें भी ट्रांसफर। एक बिजनेस को भी ओपन कर सकता है, बिकॉज एक बिजनेस चलाने के लिए वी डू नॉट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन, no MBA degrees, no graduation, you can open the business without any qualifications, right? Okay, then characteristics, हमने ये पढ़े 11 characteristics। फिर उसके बाद देखो, actually what we were studying distinguish between the economic activities earlier, right? तो उसमें हम लोगों ने here are those distinguish, ये उसी का ही पार्ट है। हमने ये distinguish पढ़े थे, these that the economic activities are income generating, they are productive, they are consumption is an economic activity, and saving, investment and wealth। उसके बाद डिस्टिंग्विश था, वही चल रहा था हमारा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर 3 आते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वी डिड दैट कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। नाउ दोज पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक आर कंटिन्यूड ओवर हियर। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ जॉब क्रिएटर। अगर आप बिजनेस खोल रहे हो तो वो आपको जॉब ही प्रोवाइड करेगा, नॉट अ जॉब सीकर। एक बिजनेस के लिए आपको जॉब ढूंढनी नहीं पड़ती, आपको अपना बिजनेस खोलना पड़ता है। इट इज अ जॉब क्रिएटर, बल्कि वो और दूसरे लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाउ इट प्रोवाइड मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ, एज आई एम टॉकिंग अबाउट इट फ्रॉम लास्ट 2 lectures, that GDP में वो हेल्प करता है, GDP बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। द मोर वी प्रोड्यूस, द मोर वी सेल, द मोर GDP increases, right? देन इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव कैसे करता है? लाइक स्टार्टिंग अ बिजनेस रिक्वायर अ साइजेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट। लाइक यस, हमने भी डिस्टिंग्विशिंग में पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट and high investment is required to start a business. That investment is required in the economic activity, but no investment is required in non-economic activity, right? Then gestation and uncertainties. Gestation period होता है that risk is high in business. Economic activities में आप काम कर रहे हो, risk is high. Risk can be calculated in advance also, but risk is there. और नॉन इकोनॉमिक एक्ट में क्या रिस्क, वो आप अपने एंजॉयमेंट के लिए करो, नो रिस्क इज देयर। देन सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। यस, ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल करने के लिए कुछ काम करते हैं, सिस्टम में काम करते हैं, ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं, ताकि हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सके और हमारा बिजनेस सही से चल सके। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड पर्पसफुल, तो यहाँ पे हमारा डिस्टिंग्विश खत्म होता है। देन we start with forms of objectives of business। social objective है, economic objective है, profitability है, plant है, social environmental objectives है। then we have economic activities, organic objectives, social objectives and legal objectives। तो economic objectives क्या है? earning profits, higher the risk, higher the profits, higher the sales, higher the profits, like
higher the return on investment, higher the profits, right? Organic objectives like सर्वाइवल, हेल्थ हमारी सही रहे, उसके बाद ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन हो सके हमारा बिजनेस का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे एजुकेशन प्रोवाइड करें हम लोग, और एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखें, एम्प्लॉयज़ को प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करें, ग्रेट्युटी फंड एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर जॉब. देन लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स हम लोग पोल्यूशन ना क्रिएट करें, हम लोग फेयर ट्रेडिंग करें, माल प्रैक्टिसेस ना करें, और हमारे कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं, और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें सेल करने चाहिए, और जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करे ऐसे प्रोडक्ट सेल करो. Then responsible business, vision thinking or meaningful enterprises, right? Then we have forms of business organization. This is the third part of the chapter 1, and this is the last part. You have forms of business organization. Business ownership is a bundle of rights, and business may be owned single or jointly. Business is a bundle of rights. एक बिजनेस करने से हमारे बहुत सारी राइट्स आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं. इट इज़ अ बंडल ऑफ राइट्स, एंड बिजनेस कैन बी डन इवन बाय सिंगल पर्सन और बाय जॉइंटली. तो इन सब फीचर्स के बेसिस पे हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बनते हैं. बिजनेस में बी ऑर्गेनाइज एज अ प्रोप्राइटर और अ कॉर्पोरेट कंसर्न. सी हेयर, बिजनेस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ प्रोप्राइटर और अ कॉर्पोरेट. इनसे कंपनी भी हो सकती है, एक बिजनेस में भी अ प्रोप्राइटर ऑल्सो, राइट? सो दिस इज हाउ इट गोज. So now we'll start with sole proprietorship. First form of business is sole proprietorship. Sole proprietor क्या होता है? One is owns boss. वो अपना डिसीजन खुद लेता है, एक प्रोप्राइटर, और अपने खुद के डिसीजन लेता है, एंड उसे कोई रोक टोक नहीं होती है. उसको जो करना होता है वो अपने आप ही करेगा, ठीक है? दिस इज अ काइंड ऑफ बिजनेस, इट इज सोल प्रोप्राइटर. हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं अब. वन, ही इज ओन बॉस. वो अपना खुद का बॉस होता है. जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यू ऑल्सो अंडरलाइन. इट इज द इजिएस्ट एंड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस. आप कभी भी बिजनेस खोल के बैठ सकते हो. 2-4 गुड्स खरीद लो बाहर से, 50-100 क्वांटिटी में गुड्स खरीद लो और आप आज बेचने लग जाओ. गुड्स की डिमांड तो है ही. आप कहीं भी गुड्स लेके बैठ जाओगे, स्ट्रीट पे बैठ जाओगे, वो भी आपके गुड्स परचेज कर लेंगे, राइट? सो इट इज द इजिएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म. नो यू रिक्वायर, नो पेपर वर्क इज रिक्वायर. आज आप बिजनेस खोलो. आज आपके पास कोई लैंड पड़ी है, दुकान बनी हुई है, उसमें आप बिजनेस खोल लो. इट डू नॉट रिक्वायर एनी formalities, legal formalities. It can be opened easy and in the earliest form of business. And business is much appreciated in entrepreneurship literature. एक entrepreneur एक business को बनाता है, right? Entrepreneur, the sole entrepreneur is regarded as the economic hero. He is appreciated in economic literature, entrepreneurship literature. This form of business appreciate entrepreneur because entrepreneur is his own boss. वो कभी भी बिजनेस खोल सकता है, कभी भी बंद कर सकता है. Sole proprietor is regarded as the economic hero. Why he is the economic hero? वो अपना खुद का मालिक होता है. उसको जितने अमाउंट, जितने प्रॉफिट रख के गुड्स बेचना है बेचे. वो बात अलग है. कंज्यूमर्स आर ऑल्सो अवेयर. दे विल नॉट बाय गुड्स विच आर having high prices, but yes, he is own boss, so that's why he is called as economic hero. Then business can be taken on a small scale also. Business करने के लिए you do not require a large scale business to set up. Business could be taken on a small scale, right? And self employment, हम लोग अपने आप को खुद ही एम्प्लॉय कर रहे हैं.
स्मॉल स्केल पे हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल, एंड we have very high proportion of micro and small businesses. Means हमारे यहाँ ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस है एंड माइक्रो, बिकॉज कोई भी बिजनेस खोल के बैठ सकता है. लार्ज बिजनेसेस के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं, वो आदमी इतनी जल्दी नहीं खोल सकता बिकॉज इट रिक्वायर्स फंड्स. तो एज वी हैव लर्नड इन द टेबल दैट हायर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, सो स्मॉल स्केल बिजनेस में स्मॉल इन्वेस्टमेंट लगेगी तो आप जल्दी से अपना बिजनेस खोल सकते हो. And the most important thing, business are unregistered, no legal formalities are required in a business, right? Then we go to the next page. Okay. Now the business is usually these enterprises more so local retailers and street vendors. Why these are local retailers and street vendors? आज आजू बाजू की जो दुकानें हैं, those are local retailers, right? जल्दी से बिजनेस खुल जाता है. those are called local retailers and street vendors. इन businesses में सबसे माइक्रो businesses है. small is beautiful. बिजनेस जल्दी खुल जाता है, लो इन्वेस्टमेंट है, कितने सारे एडवांटेजेस है ना. फेट ऑफ द एंटरप्राइज इज लिंक्ड विद द पर्सनल वेलबींग ऑफ द ओनर. अगर एक ओनर सही है तो बिजनेस सही है. ओनर ही खराब है, वर्किंग कंडीशंस इन दीज एंटरप्राइजेस आर बाइट पुअर बिकॉज दे आर लोकल. सो लोकल है तो लेस इन्वेस्टमेंट, वो लोग एम्प्लॉयज हायर नहीं कर सकते, तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती इन बिजनेसेस की. बट दीज हैव पुअर वर्किंग कंडीशंस, बट इनको अगर इग्नोर किया जाए द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस, राइट? द एंटरप्राइजेस आर द लार्जेस्ट. मीन्स बहुत सारे एंटरप्राइजेस, there are many enterprises who have opened the small scale businesses. So largest enterprises है, sole proprietor is the largest enterprises in India, right? These collectively contribute to GDP, employment and even exports is very impactful. जब सारे बिजनेसेस को हम लोग एक साथ कंबाइन करते हैं, तो बिजनेस फर्म्स को हम लोग कंबाइन करते हैं, तो दीज हैव वेरी हाई इम्पोर्टेंस ऑन द इकोनॉमी, ऑन द GDP ग्रोथ, राइट? GDP में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. बिजनेस खोलते हैं तो हम बिजनेस खोलेंगे तो हमारा बिजनेस एक्सपैंड भी होगा, तो हमारा जो है बिजनेस एक्सपैंड होने के बाद बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे लोगों के लिए, एक्सपोर्ट्स करने लगेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होने लगेगा, राइट? द स्मॉल इज ब्यूटिफुल इज द क्रक्स ऑफ द बिजनेस, राइट? GDP, employment, even exports, it is beautiful, right? Then we products from such enterprises are called local products. हम इन प्रोडक्ट्स को लोकल कहते हैं. These are local enterprises, micro enterprises, small enterprises. तो उनके प्रोडक्ट्स को जनरली लेमन लैंग्वेज में लोकल प्रोडक्ट्स कहते हैं. मीन्स दीज आर इजीली अवेलेबल. ब्रांडेड शॉप्स आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगी, एक पर्टिकुलर एक मॉल में होती है या फिर एक पर्टिकुलर अच्छी मार्केट होगी, वहां पे मिलेगी आपको, राइट? दोज आर लार्ज एंटरप्राइजेस. ब्रांडेड वाले लार्ज एंटरप्राइजेस है, पर दीज आर लोकल एंटरप्राइजेस. बहुत ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बट लैक ऑफ एम्प्लॉयज वेलफेयर इज देयर. लाइक लैक ऑफ वेलफेयर, एम्प्लॉयज वेलफेयर. क्या होता है, हायर एंड फायर रूल होता है. जब बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो वो एम्प्लॉयज को जो हायर किए हुए होते हैं वो उनको सैलरी देने का वो नहीं होता, तो वो उनको आउट ऑफ द बिजनेस निकाल देता है. देन वी हैव पर्सनल वेलबींग ऑफ बीइंग द ओनर. द फेट ऑफ द एंटरप्राइज इज लिंक्ड विद द पर्सनल वेलबींग ऑफ द ओनर. एंड पर्सनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, वो बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर अपनी पर्सनल सेविंग्स लगाता है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट लगाता है. द रिस्क इज वेरी हाई, रिस्क इज वेरी हाई. बैंक फाइनेंस
लेता है, लोन लेता है, उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट करता है. देन दिस इज हाउ वी डेट sole proprietor. He is the sole bearer of the risk, one's own boss. ये आपको शॉर्ट में है, एग्जाम से पहले आप ये टेबल रीड करके चले जाओ सोल प्रोप्राइटर के लिए. देन क्वाइट नाइस, सिर्फ ये वीडियो रीड कर लोगे तो राइट. Then we have sole provider of capital, visibility of the owner and personalized services, sole bearer of the risk, unlimited liability. Yeah, unlimited liability. This is very important. Why he has the unlimited liability, sole proprietor? कि अगर लॉस हो जाता है तो उसको अपने एस्टेट से ही वो लॉस बियर करना पड़ता है. There is no one from outside who is gonna come and help him, right? और उसका लॉस अपना ही लॉस है, उसको अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के चाहे वो लॉस रिकवर करे, बट ही इज हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी. ठीक है. और फेट ऑन गॉइंग कंसर्न मतलब एक बिजनेस खोला जाता है आज या कल में शट डाउन करने के लिए फोर्सेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए खोला जाता है. अनफोर्सेबल पीरियड ऑफ टाइम, ये कभी शट डाउन ही ना होना पड़े और ग्रोथ और एक्सपैंड होती रहे. एंड सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, या if someone has opened a business, then his son will continue the ownership, right? This is how succession of ownership मतलब liabilities और assets, profits और losses दोनों ही चीजें as it is transfer होती है, right? Next we have Hindu undivided family. Hindu undivided family is formed automatically by the members. By the members ये खुलता है. Ancestral include होते हैं, means जैसी बेबी born होता है he becomes the member of Hindu undivided family, right? And ancestral including their wives and daughters. Wives भी include होती है, daughters भी include होते हैं. It's not only that only male members will be the part of Hindu undivided family, but also female members are also there. Then an HUF cannot be formed by a group of people who do not constitute a family. This is very important. Hindu undivided family is formed through own blood. ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने किसी से पार्टनरशिप कर ली, कोई बाहर का इंसान था और आपने HUF खोल के बैठ गए. नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल. एक सेम ब्लड होना चाहिए. And separate entity status. Yes, Hindu undivided family has separate entity status and income tax के अंदर registered होता है under the Income Tax Act. Income Tax Act के according it is a separate entity. HUF अलग, members अलग, right? The HUF cannot earn income from salary. HUF कभी भी अपनी इनकम सैलरी में से अर्न नहीं कर सकता है, उसका भी अपना प्रॉफिट होता है. कैन नॉट डू जॉब ओनली, कैन डू बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक है. एक HUF अपना खुद जॉब नहीं कर सकता HUF में, वो अपना बिजनेस खोल सकता है, एक प्रोफेशन खोल सकता है अंडर HUF. ठीक है. तो उसको जब वो एम्प्लॉयमेंट कर ही नहीं सकता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी और की कंपनी में काम करो, किसी और की कंपनी में काम करोगे तो ओन ब्लड कैसे हुआ और वो HUF कैसे बना, राइट? सो इनकम फ्रॉम सैलरी कैन नॉट बी अर्न. 3 successive generations minimum is the requirement. What is the requirement? 3 successive generations होनी चाहिए to form an HUF. 3 successive generations of an individual family is known as. 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, but minimum requirement is 3. Then अब HUF is Hindu undivided family means Hindu people. Now who are the people who can form an HUF? A Buddhist, a Jain, a Sikh family or a Parsi family. Okay, Parsi family, Sikh, Buddhist and Jain, these 4 can form an HUF. Right? Now thirdly, for the purpose of understanding HUF's features, business entity, other important relevant laws
is the Hindu Succession Act. इसका मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसके अंदर काम करती है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर इसको रजिस्टर करना होता है, राइट? वाओ, इतना छोटा था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब इसको सेम थिंग, एग्जाम से पहले इस टेबल को रीड करके चले जाओ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को समझने के लिए। फॉर्म्ड बाय बर्थ इन अ हिंदू, that is Buddhist, Jain and Sikh. I think so Parsi has been excluded from now onwards, so do not write Parsi, it's Sikh, Buddhist and Jain, right? Then we have family pool of resources. Family pool of resources मतलब 3 successions are required. Own blood means family से family ही चलती है, no other members, out member, foreign members not allowed. फॉरेन मेंबर्स मीन्स हमारी फैमिली से अलग। देन सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट। कैपिटल कैसे इन्वेस्ट होती है? फैमिली ही देती है, फैमिली ही इन्वेस्ट करती है, पर्सनल सेविंग्स ही इन्वेस्ट की जाती है। देन फैमिली मेंबर्स आर ऑटोमेटिक को ओनर्स, दैट इज को पार्टनर्स। जैसे बर्थ लेता है बच्चा तो न्यू बॉर्न बेबी को को पार्टनर कहता है कि जब वो 18 का हो जाएगा, 18 के बाद ही कैन डील इन द बिजनेस and can buy and sell on behalf of the business. That is called as co-partner. तो by birth member बन जाते हैं, ठीक है। and डिसीजन मेकिंग इज क्विक, क्योंकि हमें खुद डिसीजन लेना होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो कर्जा जो द करता इज द पर्सन, द फैमिली जो सबसे बड़ा होता है, जैसे दादाजी, ग्रैंडफादर इज द को पार्टनर। अगर ग्रैंडफादर भी हैं तो वो को पार्टनर हो जाएंगे। मतलब सबसे द ओल्ड मेल मेंबर इज द कर्ता एंड उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वेयर एज अदर कर्ता के सन, उसके ग्रैंडसन, उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स दे डू नॉट हैव टू पे फ्रॉम देयर एस्टेट, they have limited liability, only the कर्ता has unlimited liability. ये भी गोइंग कंसर्न होता है बिजनेस चालू करने के लिए। एट सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, एज आई टोल्ड यू, जैसे जैसे कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो सारी लायबिलिटीज एंड एसेट आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट कर्ता, राइट? सक्सेशन हो जाता है, all the things in the name of the next member, right? Then partnership business. partnership क्या होती है? partnership is contractual और co-ownership. contractual co-ownership है ये, मतलब it is made a relation between 2 or more members, minimum 2 or more, ठीक है? एक 2 या फिर उससे मैक्सिमम 2 या 2 से मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2। 2 मेंबर है तो आप एक पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हो। दे हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बोथ। मतलब एक पार्टनरशिप अगर लॉस हुआ है तो दोनों पार्टनर्स या जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर है तीन में से तीनों बियर करेंगे, एंड प्रॉफिट्स हुआ तो प्रॉफिट भी तीनों को ही बटेगा। 2 है तो दोनों को ही बटेगा, बट कितने बटेगा that is also pre-decided when it is formed. हम लोग रेशियो डिसाइड करते हैं किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट और लॉसेस मिलेगा। इट इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दिस मीन्स म्यूचुअल एजेंसी। अगर किसी एक पार्टनर ने कंपनी के बिहाफ, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कुछ बाय या सेल किया है, तो अदर पार्टनर्स आर ऑल्सो लायबल फॉर दैट बाइंग और सेलिंग। अगर उसने बाय किया है तो अदर पार्टनर्स को भी पेमेंट करनी पड़ सकती है न्यू फ्यूचर इफ दैट पार्टनर डिनाइज, राइट? और सेल किया है तो जो प्रॉफिट्स मिलेगा, दैट प्रॉफिट विल नॉट ओनली फॉर बाय द पर्सन हु सोल्ड इट, इट विल बी फॉर ऑल द पार्टनर। दैट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग द ऑल द पार्टनर। दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। In law, you will be understanding what is mutual agency. So this is only mutual agency, but in detail you will be learning, right? Then we have partnership deed is there. This is a registered, if
partnership, you can have deed and you cannot have deed, but it is always preferred to have a written deed, बिकॉज आपके पास प्रूफ होता है कि हमने इतनी रेशियो में डिसाइड किया था, तो इतने प्रॉफिट्स और लॉसेस बटेंगे, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि किसकी कितनी लाइबिलिटीज है, किसको कितने रेशियो में प्रॉफिट्स और लॉसेस बटेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें उस डीड में लिखी होती है। उसी के हिसाब से कितना परसेंटेज ऑफ लोन मिलेगा और कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और ड्रॉइंग्स कितने एक्सटेंड तक आप विदड्रॉ कर सकते हो। All those things are written on the partnership deed. Then it can be verbal and written. And this partnership act is registered under the Indian Partnership Act. What does this mean? एक sole proprietor को कोई भी एक्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अच्छी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर होना था और ऐसी पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। Then it may be registered or may not be registered, it depends, but it is preferred to get registered. तो अच्छी अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो हाँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा, बट इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड देन आल्सो इट इज फाइन। बट फॉर एन अनरजिस्टर्ड फर्म, इफ यू आर नॉट हैविंग डीड, you will not get any interest on capital, no interest on drawings, nothing, and the profits also will all be distributed इक्वली। जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशो था, अगर आपने डीड ही नहीं बनाई है तो नो प्रूफ यू आर हैविंग कि इतना इसको मिलना था और इतना इसको मिल रहा था, तो क्या होता है, इक्वली डिवाइड होते। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है कि अगर डीड नहीं बनाई है फॉर अनरजिस्टर्ड फर्म ऑल्सो दे विल फॉलो दीज प्रोविजंस, राइट। देन हियर आर पार्टनरशिप ends, mutual agency, see I said it, unlimited liability. Then we have limited liability partnership. What is a limited liability partnership? It has features of both the company and the partnership। एक company और एक partnership दोनों के features होते हैं। So first we'll do the features, what is a company, then we'll come to LLP। What is a company? Company is a corporate business। कंपनी कैन बी पब्लिक कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट ओन्ड है, अपनी एक ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल ने खोली होती है। एक पब्लिक कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर यू में से कंपनीज एक्ट 2013, राइट। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। एक्चुअल रजिस्टर्ड तो दोनों को ही होता है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक कंपनीज गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी एंड प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट सेक्टर एक इंडिविजुअल ने खोली हुई है। देन वी हैव इट इज अ कॉर्पोरेट बिजनेस एंड एग्जिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। मतलब मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, डायरेक्टर्स अलग। So its existence is independent of all its members and directors, right? Then एक company जब incorporate होती है under the Companies Act 2013, you get a identification number that is called as CIN, that is Corporate Identification Number। Corporate Identification Number इट इज़ अ डिस्टिंक्ट नेम के अंदर और एड्रेस दिया जाता है कंपनी का। तो हमारी कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस में रजिस्टर होती है, वो हमें एक सिन नंबर देते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट वी यूज फॉर फर्दर डीलिंग्स ऑफ द कंपनी। द वर्ड कंपनी लिटरली इम्प्लाइज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन। इसमें भी 2 or more पर्सन चाहिए होते हैं, बट एक कंपनी की लिमिट इज अनलिमिटेड। आप मैक्सिमम कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स रख सकते हो। वेयर एज एक प्राइवेट कंपनी में इट इज लिमिटेड टू 200, राइट। 200 मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर 200 से ज़्यादा है तो दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपनी, दैट विल नॉट एग्जिस्ट एज अ पार्टनरशिप मोड। एक कंपनी के अंदर नाउ इट इज ऑल्सो लाइक कि एक आप 1 person कंपनी भी खोल सकते हो। You can also open a 1 person company
वन पर्सन कंपनी इज वन पर्सन कंपनी, उसके अंदर आपको लिमिट वो नहीं करनी पड़ती है कि दो मेंबर्स ही चाहिए. यू कैन हैव वन पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द वन पर्सन कंपनीज एक्ट. उसके लिए एक्ट अलग होता है, बट कंपनीज एक्ट के अंदर भी रजिस्टर्ड होना पड़ता है. ठीक है. ओके, देन वी हैव अ स्मॉल कंपनी ऑल्सो. स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी. These are the different types of company on the basis of scale. अगर small scale enterprises है in India and registered in the Companies Act, it will be called as small company. और अगर देखो small company कौन है, registered in the Indian contract in the Companies Act and having a small scale of enterprises. Dormant company वो होती है which provides for the incorporation. Dormant company will be created for any future project. Dormant companies are those companies which are incorporated for some particular task. जैसे ही वो टास्क पूरा हो जाता है, that company collapse under the law. जैसे ही वो टास्क, the day the task get over, suppose आपने एक कंपनी बनाई थी to build हॉस्पिटल, तो जिस दिन वो हॉस्पिटल ओवर हो जाएगा, बन के बिल्ड हो जाएगा, from the next day under the law that company is no more in existence. So these type of companies are called dormant companies which are made for fulfilling particular task, और उस टास्क को पूरा होने के बाद वो खत्म हो जाती है. ठीक है. For future projects or to hold an asset means एक्चुअली वॉट डोमेंट कंपनी में आपको सही बताऊँ तो डोमेंट कंपनी, आपने कोई टास्क फ्यूचर में टास्क करना है, एक हॉस्पिटल का टास्क बनाना था, तो हॉस्पिटल बनाने के लिए आपने अभी से कुछ एसेट्स खरीद लिया, लाइक लैंड खरीद के रख ली है या फिर लैंड खरीद के रख ली है. ठीक है, लैंड खरीद के रख ली है और कुछ एसेट्स खरीद ली है उसका हॉस्पिटल को बनाने के लिए. बट वो हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी आफ्टर 2 years. आपने अभी सिर्फ लैंड खरीद के रखी है, अभी आप मेंबर्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो एक कंपनी, डोरमेंट कंपनी बनाई जाती है जो उस लैंड को होल्ड करती है. ठीक है, उसको मतलब वो कंपनी कोई ट्रांजैक्शन में डील नहीं करती है. नो, इट ओनली होल्ड्स एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करती है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. जिस दिन वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, आफ्टर 2 years द प्रोजेक्ट गेट स्टार्टेड, देन दैट कंपनी dissolves, right? This is the main definition of dormant company. Then we shall have private companies and public. As I told you, private companies are owned by a private sector. Its limit is 2 to 200 and a public company की होती है 2 to unlimited members. ठीक है. और प्राइवेट कंपनी की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, वैसे पब्लिक कंपनी की अनलिमिटेड होती है लायबिलिटीज. और एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कंपनी के पास एमओए होना चाहिए. एमओए की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. एमओए होता है, एओए होता है. एमओए इज विच डिफाइंस द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी क्या है, किस चीज़ की कंपनी है, क्या काम करती है कंपनी. एओए बताता है रूल्स और रेगुलेशंस की कंपनी किस वे से काम करेगी, क्या रूल्स हैं उस कंपनी के, क्या क्या काम करेगी, कैसे कैसे काम करेगी, राइट. That tells about AOA. AOA tells the objectives and how to fulfill these objectives, and MOA tells that what is the company about. What is the company about? A focuses on internal regulations, कैसे कंपनी काम करेगी, और AOA बताएगा कि वो कंपनी बनाई किस चीज़ के लिए, ऑब्जेक्टिव क्या है उस कंपनी का. ठीक है. और एक कंपनी कैपिटल भी बाहर से इशू कर सकती है. मतलब कंपनी में प्रोस्पेक्टस निकालती है कंपनी कि हम लोग इतनी कैपिटल इशू करेंगे. दैट प्रोस्पेक्टस सेबी के गाइडलाइंस के अंदर निकलता है. स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स निकाले जाते हैं कंपनी के.
ठीक है, company can be listed company under the SEBI and increases the cost of compliance. Increases the cost of compliance means SEBI के अंदर statutory audit होता है, वो listed होती है, listed company under the SEBI and have flexibility in their internal functioning. बाहर से people invest करते हैं and they get in return dividends, right? And then we have greater flexibility. Then there is a little surprise that the Indian corporate sector is numerically dominated by private listed company. Are you getting? मतलब कि most of the companies are private sector companies and public sector companies are very very less. क्योंकि प्राइवेट कंपनी की अपनी दुनिया होती है, बट एक पब्लिक कंपनी को गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं, तो उनको ज़्यादा ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज हो जाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हाई हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं. The MCQ can come the most recently introduced form of company, then you will say OPC, that is one person company is the most recently introduced form of company. प्राइवेट और पब्लिक कंपनी तो पुरानी है, बहुत पहले से चलती आ रही है, बट वन पर्सन कंपनी इज इंट्रोड्यूस्ड नाउ. एंड नाउ विल मूव ऑन टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. हमारा कंपनी खत्म हो गया है. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज, as the name says, it is a partnership having liabilities of the members limited. मीन्स एक पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होते हैं, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी और पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन है. तो कंपनी में जो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो दैट इज द क्रक्स, जो अच्छे पॉइंट है दोनों में से, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में है. दैट इज लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड. उनको अपने स्टेट से कोई रिपेमेंट नहीं करना पड़ता है. It has limited liability of the partners is limited. Then mandatory incorporation under the Liability Partnership Act 2008. Then Ministry of Corporate Affairs. Okay, Ministry of Corporate Affairs, the apex body of regulation of the company form of business organization. Means इसके regulations follow किए जाते हैं Indian overseas, the governments of the LLP too, right? Then we have the purpose of compliance with the regulations thus imposed. The LLP Act provides the designated partners. The partners is called, मतलब regulations जो impose करता है, those are called as designated partners. एक कंपनी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की कंपनी की तरह सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. दैट इज कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग. दिस इज व्हाट इट मीन्स. इट हैज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग. इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, या परपेचुअल सक्सेशन, द कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है. और ऐसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का भी परपेचुअल सक्सेशन होता है. इट इज द हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. व्हाट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑपरेशन? दैट इट कंटेन्स बोथ द फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट एज वेल एज द प्रोप्राइटर, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म, राइट? ये दोनों के मिक्सचर है, तो इसको हाइब्रिड फॉर्म कहते हैं. यहाँ पे हमारा लिमिटेड लायबिलिटी बहुत छोटा सा था. इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी. लाइक पार्टनरशिप में इनकॉर्पोरेशन यू मे रजिस्टर योरसेल्फ, यू मे नॉट रजिस्टर, बट एक कंपनी में रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी. तो क्या चीज़ अच्छी है? रजिस्टर करोगे तो ज़्यादा अच्छे बेटरमेंट में रहोगे. तो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी. देखो, एक सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी, वेयर एज इन कंपनी एंड अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, राइट? लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, इसमें भी पार्टनर्स की. इट इज अ लीगल सेपरेट एंटिटी. 2 is the minimum limit and no limit is the maximum number of members. Maximum number of members are
20 partners, 200 था ना, ओके इसमें 20 है. देन वी हैव रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में रजिस्टर होना होता है, ठीक है. देन स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं. Then every partner of the LLP is the agent for the firm, that is mutual agency is followed under LLP also. So here our first chapter ends. Okay, this is the summary. From next day we'll be starting with chapter number 2. MCQ पे भी वीडियो बना दूंगी मैं आपके लिए, MCQ सॉल्व करेंगे हम साथ में. ओके, till then bye bye, take care.